ओके जी। सो अगर हम मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन करें विद इन द सेल, तो हम उसको डिफाइन करते हैं दो डिफरेंट सब प्रोसेसेस में, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एंड आई एम श्योर आप लोगों को इनमें डिफरेंस पता होगा। In one case, we break the complex compound into simple compounds. In other case, we make the complex compound using simple compounds. So अगर इस चीज़ को सामने रख के चलें तो हमारे पास कुछ जीन्स ऐसे होंगे जो जब एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, यानी कि प्रोटीन्स उससे बनती हैं, आफ्टर दैट दोज प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड in like breaking down the complex compounds. So we call those genes as catabolic genes. So Lac Operon is basically one example of catabolic gene. Tryptophan operon is entirely different. That operon will work to prepare the tryptophan. Lac operon में operon will be responsible to break down lactose into glucose and galactose, whereas in tryptophan operon, tryptophan is made after the expression. हम दोनों के हवाले से अलग अलग बात करेंगे. So अगर catabolic gene expression की बात की जाए तो that is the example is the Lac operon. Before going into detail of this operon and its expression, let's talk about one experimental setup. आप लोगों ने ये बात पढ़ी भी हुई है और सुनी भी हुई है that bacterial cell divides within the medium in a specific time interval. अगर मैं आपसे ये स्टेटमेंट पूछूं how much time a bacterial cell needs to divide, तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? 20 minutes. If you say 20 minutes, then I would say that your answer is not right because my question was incomplete. The question will be complete when I put a condition that in which kind of medium the culture is being done. एक culture आपने term सुनी होगी minimal medium. Minimal medium is the bacterial culture medium which is supplemented with all the essential nutrients, and then bacterial culture can grow in that minimal medium within the least possible time, जो आप 20 minutes का time लेते हैं. But what if you provide if you do not provide the minimal medium, अगर आप उसको जो है complex medium या फिर एक nutrient provide कर दें and let it grow, in that case bacterial cell को division के लिए जो जो biomolecules चाहिए होंगे उसको वो metabolic pathway से बाकी चीज़ें जो है तैयार करनी पड़ेंगी, तो ultimately division cannot take place within 20 minutes. So इसी context में हमारे पास तीन different किस्म के culture media हैं, जिनमें एक में है ग्लूकोज मौजूद है, एक में ग्लूकोज प्लस लैक्टोज मौजूद है और तीसरे में सिर्फ लैक्टोज मौजूद है. Now there is a question that which medium is going to be like the preferred medium for bacterial cell division. Obviously, you may think about the simplest carbohydrate, that is glucose. कि ग्लूकोज में सेल डिवीजन होगी, बैक्टीरियल सेल विल डिवाइड एंड ग्रोथ विल अकर. व्हाट अबाउट दिस सेकंड एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिसमें ग्लूकोज भी मौजूद है, लैक्टोज भी मौजूद है. अब यहाँ पे अगर ग्लूकोज को देखा जाए, if glucose is present then that will be the preference of the bacterial cell to draw energy using the glucose. And if glucose is no more present, is totally consumed, then the question is whether the cell division or bacterial culture keeps on growing or not using lactose. The answer is yes. In both the conditions, bacterial cell will consume glucose or lactose. And what if only lactose is provided in the culture medium? Bacterial cell will grow or not? Again, the answer is yes, it will grow, but to metabolize the lactose, the bacterial cell will need some specific enzymes, and those specific enzymes has to be prepared by the bacterial cell. Now, those enzymes which are required for metabolism of the lactose, they are synthesized by three different genes which are regulated by a single promoter. Therefore, that group of three genes next to each other is called as Lac Operon.
Before going into that further detail, just look at the carbohydrate lactose और इसमें जो monomeric subunit हैं, they are glucose and galactose. Once lactose is metabolized, again you get the glucose and galactose, which is used by the bacterial cell for its energy requirement. लैक्टोज के हवाले से जब हम बात करते हैं, अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 सिचुएशन है, एक्सपेरिमेंटल नंबर 2 सिचुएशन है और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 सिचुएशन है, इन ऑल दीज 3 कंडीशन बैक्टीरियल सेल के अंदर जो एक पर्टिकुलर एंजाइम है जो कि रिक्वायर्ड है लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए, दैट इज़ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसकी क्वांटिटी वेरी करती है। अगर आपके पास कल्चर मीडियम में सिर्फ ग्लूकोज मौजूद है, देन वी हैव ओनली few molecules, less than 5 molecules of this particular enzyme. But if the cell comes across with lactose as a culture, as a nutrient, then immediately this beta galactosidase number of these molecules, they increase and they go more than 5000. इनकी जो growth है that goes like significantly high. ये screen सबके पास stuck है? I don't think so. जी सर। Okay. Wait a second. जी है, बताइए। शो हो रही है सर जी। हो रही है, चले। सो बात ये हो रही थी कि अगर ग्लूकोज वाले सेटअप को बात करें तो उसमें जो पर्टिकुलर एंजाइम है दैट इज इन्वॉल्व इन लैक्टोज डाइजेशन, दैट इज प्रेजेंट इन वेरी माइनर क्वांटिटी, बट जैसे ही लैक्टोज आप कल्चर मीडियम में देते हैं तो सेल के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, बिकॉज लैक्टोज इंड्यूसेस द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन। सो चूँकि इंडक्शन का वर्ड यूज़ हुआ है तो हम इस ऑपेरॉन को इंड्यूसेबल ऑपेरॉन भी कहते हैं, कि जब भी आप लैक्टोज देंगे तो इट्स एक्सप्रेशन विल स्टार्ट। अब अगर हम एक ऑपेरॉन को देखें, मैं लैक्टोज ऑपेरॉन की तरफ बाद में आऊँगा, जितने भी ऑपेरॉन्स हैं दे हैव अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ और डिफरेंट स्पेसिफिक कंपोनेंट्स। अगर इस पिक्चर में आप देखें, वी हैव अ प्रोमोटर, we have an operator, and then we have the group of genes which is part of that promoter. इसके साथ ही हमारे पास एक रिप्रेसर प्रोटीन मौजूद है। ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये रेगुलेटरी रोल प्ले करती है, एंड दिस रेगुलेटरी प्रोटीन और रिप्रेसर प्रोटीन इज द प्रोडक्ट ऑफ अनदर जीन विच इज प्रेजेंट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऑफ दिस रेगुलेटरी जीन। इस रेगुलेटरी जीन को हम आगे चल के आई जीन या इनहिबिटरी जीन के नाम से जो है वो लेबल करेंगे और पढ़ेंगे। So these three genes, gene 1, gene 2, gene 3, they are under the control of single promoter, therefore we call it as one operon। और इसके अंदर जो genes मौजूद हैं हम उनको structural gene के लिहाज से जो है वो लेबल करेंगे। So operon has two types of genes, one is regulatory gene, the second one are the structural gene। और अगर ऑपेरॉन के जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात की जाए, देयर इज़ वन प्रोमोटर एंड देयर इज़ वन ऑपरेटर, and the operator has the structural genes included in the operator region. Now, if you look at this picture at the top of this slide, this is the arrangement of genes or different components of Lac Operon. It has towards its 5 prime and it has the inhibitory gene, या फिर जिसको मैंने regulatory gene का नाम दिया था। It has its promoter region, it has its operator region, and it has 3 genes which are named as Lac Z gene, Lac Y gene, and Lac A gene. These components need to be understood what are their function। अभी एक कंपोनेंट का मैंने जिक्र नहीं किया, ये आगे चल के इसका जिक्र आएगा, CAP और CAP sequence। This is a point, this is a sequence to which one protein will come and will bind. How it will happen, we will talk about it। अब हम अगर बात करें
इसकी रेगुलेशन के लिहाज से, या फिर मैंने इंड्यूसेबल ऑपरॉन्स की बात कर दी। इंड्यूसेबल ऑपरॉन्स आर दोज ऑपरॉन्स विच आर इंड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द बायोमोलिक्यूल, जैसे कि लैक्टोज है। दूसरी किस्म की जो ऑपरॉन्स होते हैं उनको हम रिप्रेसिबल ऑपरॉन्स कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल द ऑपरॉन विल नॉट ट्रांसक्राइब, विल नॉट ट्रांसलेट, दैट मीन्स उनकी एक्टिविटी रिप्रेस हो जाती है। सो वी कॉल देम एज रिप्रेसिबल ऑपरॉन। हमारा जो नेक्स्ट ऑपरॉन की एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन इज एग्जांपल ऑफ रिप्रेसिबल ऑपरॉन। अब अगर हम इस इंड्यूसिबल ऑपरॉन की बात करें या लैक ऑपरॉन की बात करें, तो इसकी जो एक्टिविटी है दैट इज बेसिकली एसोसिएटेड with the inhibitory gene and the product of the inhibitory gene. अब अगर इस product की बात करें, what is the product of this inhibitory gene? These are the proteins which are called as repressor protein. जब repressor protein तैयार होती है 4 molecules as a tetramer, this repressor binds to the promoter region. Now this is when we don't have the expression, that means when we don't have the lactose. बट व्हेन लैक्टोज कम्स देन उसके मेटाबॉलिज्म के लिए ये तीनों जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ज़रूरी है, तो हमें ये जो रिप्रेसर प्रोटीन्स हैं इनको चारों को रिमूव करना है। सो दिस इज़ वेयर द इंडक्शन occurs एंड हाउ दीज रिप्रेसर प्रोटीन्स दे आर गोइंग टू बी रिमूव्ड। वही लैक्टोज मॉलिक्यूल या लैक्टोज के मेटाबोलाइट्स दे विल कम एंड दे विल बाइंड टू दीज प्रोटीन्स। 4 प्रोटीन्स हैं तो कम से कम 4 बायोमोलिक्यूल्स चाहिए जो इस रिप्रेसर के साथ बाइंड करेंगे, और रिप्रेसर के साथ बाइंड होने की वजह से इन प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन की कन्फर्मेशन चेंज होगी, दे विल लीव द प्रोमोटर रीजन एंड दिस स्पेस कैन देन बी ऑक्युपाइड बाय द आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ तक बात क्लियर है जी? एनीवन कैन जस्ट स्विच ऑन द माइक और मुझे बता दे ताकि मैं आगे बात करूँ। Yes, sir. Okay, so now we are going to talk about this picture, और इसकी लेफ्ट पे जो टेक्स्ट है that is explanation of this picture. अभी मैंने इंड्यूसर की बात की, that is lactose, और कुछ बुक्स में लिखा हुआ है लैक्टोज के अलावा उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं they can also act as inducer. उनमें जो एग्जांपल है that is the allolactose और that is IPTG isopropyl thioglycoside. अब आप अगर इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स देखें ना एलोलैक्टोज की और IPTG के और लैक्टोज के, दे आर मोर और लेस सिमिलर, और सिमिलर स्ट्रक्चर होने की वजह से द पॉइंट ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन जहाँ पे इन इंड्यूसर्स ने बाइंड होना है, ये इंड्यूसर वहाँ पे डिफरेंट इंड्यूसर कैन गो एंड कैन बाइंड ऑन द रिप्रेसर प्रोटीन। जैसे मैंने पहले बात की कि ये रिप्रेसर जो है दैट इज नॉर्मली प्रेजेंट ऑन द प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन व्हेन इंड्यूसर कम्स बाइंड्स टू द रिप्रेसर, it inactivates the repressor and repressor leaves the promoter operator junction. When this promoter operator junction is free of this repressor protein, then comes the RNA polymerase और ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे आप अपने जहन में ले आइए, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स हमने बात की थी, एक एंजाइम है जिसके मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं, और वो एंजाइम यहाँ पे आके बाइंड करता है एंड देन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स। अब अगर आप गौर से देखें Z, Y एंड A जीन, 3 जीन्स लेकिन अ सिंगल मैसेंजर आरएनए। इफ़ यू रिमेंबर हमने मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए के टॉपिक में बात की थी यूकेरियोट्स में, that one RNA that carries the translation information from one gene, that is monosystonic RNA, and when we have a single messenger RNA that is transcribed by more than one gene, this particular RNA is called as polycystonic messenger RNA. So this polycystonic messenger RNA will translate as many proteins, as many genes are present in the operon. अब लैक ऑपेरॉन में 3 जीन्स हैं Z, Y एंड A, तो हमारे पास 3 प्रोटीन्स ट्रांसलेट होंगी 1, 2 एंड 3। अब इन 3 प्रोटीन्स को देखा जाए तो दे हैव देयर स्पेसिफिक नेम। जीन Z और Z बेसिकली इज सर रिस्पॉन्सिबल मेरी फॉर तरफ आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, बाकी लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है जी? सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही।
और हाँ सर, बाकी दोनों चीजें क्लियर है। सर मुझे भी स्क्रीन शो नहीं हो रही कब से। सर सही सब कुछ हुआ। आप ओके, जिसको आवाज़ नहीं आ रही और जिनको स्क्रीन शो नहीं हो रही, ये इनको जो है दोबारा ज्वाइन करना चाहिए फिर। ठीक है, मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके एंड पे नेटवर्क में है। आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए क्लास। ठीक है, ओके जी। सो बात हो रही थी, यस, Z gene and then Y gene and then A gene, इनके प्रोडक्ट के ऊपर। Z gene बेसिकली ट्रांसलेट्स बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, Y gene ट्रांसलेट्स परमिएज प्रोटीन और आप एंजाइम कह लीजिए, और A gene ट्रांसलेट्स ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। अब इन तीनों के स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसा कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक द ग्लैक्टोसाइड बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। आई विल गो टू प्रीवियस स्लाइड। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है दे आर लिंक्ड बाय वन बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस लिंकेज को जब ब्रेक करना होता है, यहाँ पे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की ज़रूरत पेश आती है। सो वन एंजाइम product of Z gene is responsible to hydrolyze this particular bond. Then, as the name permease is referring the permeability, अभी मैं आगे चल के इसकी बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके बताना चाहूँगा। दिस इज़ आवर बैक्टीरियल सेल। लैक्टोज जितनी भी मौजूद है वो एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद है। Lactose is not a small molecule, it is a disaccharide. So bacterial cell wall is not permeable for this lactose. ये lactose directly enter नहीं हो सकता। Therefore, we need certain channels or certain proteins which makes up kind of holes in the bacterial cell wall. आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा होगा, there are different proteins which makes up the channels which makes up the carriers. तो ये चैनल शेप प्रोटीन्स होती हैं जो आती हैं ट्रांसलेशन के बाद, दे एम्बेड इटसेल्फ इन द बैक्टीरियल आउटर सेल वॉल सो दैट द लैक्टोज रश इनटू द बैक्टीरियल सेल। और मल्टीपल प्रोटीन्स होती हैं, आप ये समझ लें कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर मल्टीपल पोर्स बन जाते हैं, through those pores lactose can rush into this particular bacterial cell, and this permease is basically responsible to increase the permeability of the bacterial cell for lactose. जहाँ तक ट्रांस एसिटाइलेज का फंक्शन है, इट्स फंक्शन इज़ नॉट येट क्लियर, बट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप, for transfer of acetyl group from one position to the other position, from one particular molecule to the other particular molecule. So we come back to this picture. These are three enzymes. Then comes up the substrate lactose. Catabolic pathway होगा और lactose is broken down into glucose and galactose. With this procedure keep on going, एक ऐसा वक्त आएगा कि जो लैक्टोज की कंसंट्रेशन है that will start decreasing within the cell, and there will be one time जब बैक्टीरियल सेल के अंदर किसी किस्म का लैक्टोज मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होगा सिवाय 4 लैक्टोज मॉलिक्यूल के। और वो 4 लैक्टोज मॉलिक्यूल्स कौन से थे? जो यहाँ पे प्रोमोटर ऑपरेटर जंक्शन के ऊपर रिप्रेसर प्रोटीन मौजूद थी उसके साथ बाइंड किए थे। So with the passage of time, when there will be no more lactose present in the cell, ये चारों के चारों जो lactose molecules हैं, they will separate from the repressor proteins, they will get metabolized, and as there is no more inducer is attached with the repressor protein will come back and it will bind with its position at promoter and operator junction. In this way, lactose is going to induce the expression of its operon, going to prepare the enzymes, and those enzymes are going to digest or metabolize the lactose into glucose and galactose. जी यहाँ तक बात क्लियर है?
सर 4 से ज़्यादा लैक्टोज नहीं अटैच कर सकते उधर? नहीं, 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते बिकॉज रिप्रेसर इज़ अ टेट्रामेरिक प्रोटीन। उसमें 4 प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं। हर प्रोटीन सब यूनिट के साथ एक लैक्टोज का मॉलिक्यूल बाइंड करता है। बाकी लैक्टोज जो है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। अभी मैं आगे कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, देन यू विल गेट एन आइडिया कि जो साइटोप्लाज्म में लैक्टोज मौजूद होता है वो बिगैर लैक्टोसाइडेज के साथ जो है वो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होता जाता है। सर लेकिन प्रेशर प्रोटीन तो बाद में चली जाएगी ना, बाद में कहाँ जाएगी? मतलब वहां से तो हट जाएगी, फिर उसकी जगह वो वो लगेगा ना लैक्टोज। उसकी जगह क्या लगेगा? लैक्टोज मतलब वो चली जाएगी, प्रेशर और लैक्टोज आके लगेगा, फिर अपना वो सारा आगे रेगुलेशन करेगा। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा इस अपने क्वेश्चन को एलेबोरेट करें बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। सर देखें, रिप्रेसर आप कह रहे हैं ना कि मतलब वहां से मतलब वहाँ चली कहाँ? जाती है, वहाँ हट कहाँ जाती है। प्रमोटर प्रमोटर ऑपरेटर रीजन से हट जाती है ना? जी। हाँ और जी। उसके बाद तो लैक्टोज लगता है ना? नहीं, उसके बाद लैक्टोज नहीं लगता, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज लगता है फॉर ट्रांसक्रिप्शन। इसको इस तरह से देखें, लैक्टोज। लैक्टोज आया, सेल में एंटर हुआ, बैक्टीरियल सेल में, वहाँ से वो गया रेप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ, रेप्रेसर प्रोटीन ने प्रोमोटर रीजन को छोड़ दिया। अब promoter region is free for attachment of RNA polymerase। RNA polymerase आएगा, promoter के साथ bind करेगा, operator region से होता हुआ ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करेगा। एंड इन द मीन टाइम इस सारे प्रोसेस के दौरान रिप्रेसर जिसके साथ लैक्टोज अटैच है वो इधर उधर कहीं फिरता रहेगा, वो दोबारा प्रमोटर के साथ बाइंड नहीं होगा जब तक लैक्टोज रिप्रेसर के साथ अटैच है। once the complete metabolism of lactose is done, तो फिर पीछे मैंने बताया कि 4 मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, उनको भी सेपरेट किया जाता है रिप्रेसर से। जब रिप्रेसर से सेपरेट किया जाता है, रिप्रेसर कम्स बैक टू इट्स पोजीशन और आके प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन को बाइंड हो जाता है। So this is यस सर। how it is happening. This kind of control is referred as a negative control। ठीक है। अब यहाँ पे आगे मैं थोड़ी सी प्रोसेस तो क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन वो ये है कि जब रिप्रेसर जो है दैट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोमोटर रीजन, इवन देन देयर आर चांसेस कि पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को बाइंड ना करे बिकॉज ऑफ इट्स लो अफिनिटी विद दिस पर्टिकुलर रीजन। तो इन पैरेलल एक दूसरा सिस्टम काम कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल को समझने के लिए पहले अगर हम प्रोमोटर रीजन को देख लें, दिस इज द प्रोमोटर रीजन ऑफ द ऑपेरॉन। यहाँ पे मैंने आई जीन की बात की थी, यू कैन सी आई जीन हियर। यहाँ पे मैंने ऑपरेटर की बात की थी, दिस इज द ऑपरेटर रीजन विच इज़ ओवरलैपिंग विद द प्रोमोटर। प्रोमोटर पे एक जगह पे हमने बात की आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट। उस आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट से पहले एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। दिस इज द सीक्वेंस फॉर अटैचमेंट ऑफ अ प्रोटीन, सीआरपी प्रोटीन या फिर इसको कहते हैं सीएपी प्रोटीन। CAP स्टैंड्स फॉर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कैटाबोलाइट एक्टिवेट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन। CAP कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन। भी मैंने स्टार्ट में बताया था कि दिस काइंड ऑफ जीन आर इन्वॉल्व इन कैटाबोलिज्म। सो कैटाबोलाइट जीन, A stands for activator and P stands for protein। अब ये कैप प्रोटीन जो है या सीआरपी प्रोटीन जो है ये डायरेक्टली आके इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ बाइंड नहीं कर सकती, और ये इसलिए बाइंड नहीं कर सकती बिकॉज इट हैज़ नो अफिनिटी विदाउट साइक्लिक एएमपी। So cyclic AMP binds with the cap protein or CRP protein, and then these two come and bind at this particular site. When this cyclic AMP and CRP binds with the promoter region, then the polymerase becomes quite efficient in binding this particular position and to proceed further for transcription। आप ये इसमें अंडरस्टैंड कर लीजिए कि दो मैकेनिज्म साथ साथ चल रहे हैं। एक में आपने रिप्रेसर को रिमूव किया ताकि जगह बन जाए पॉलीमरेज के आने के लिए, दूसरे नंबर पे आपने वहाँ पे एक ऐसी प्रोटीन अटैच की विच सपोर्ट्स द अटैचमेंट ऑफ, which facilitates the attachment of RNA polymerase with the promoter region। यहाँ तक बात क्लियर है जी?
Okay, then we proceed further. अब साइक्लिक एमपी का सेल में एक रिलेशन है ग्लूकोज के साथ. दिस इज अनदर एविडेंस कि if glucose is available, then what will happen to the expression? If glucose is not available, then what will happen to the expression of this operon? Again, अगर तो सेल में ग्लूकोज हाई है, हमारा पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिसमें हमने सिर्फ ग्लूकोज प्रोवाइड किया था, अगर सेल में ग्लूकोज हाई है, साइक्लिक एमपी विल बी लो. ये बायोकेमिकल जो है वो ऑब्जर्वेशंस हैं स्टडीज़ की. और अब हम अगर लास्ट थर्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जाएं, ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल, lactose is available, that means glucose goes down within the cell, then cyclic AMP goes up within the cell. When cyclic AMP goes up within the cell, then it becomes available for attachment with CRP or CAP protein, cap protein, to make this complex, cyclic AMP CRP complex. And now this complex can come and bind with the cap site in the promoter region of the Lac Operon. अब यहाँ पे अगर देखें, high glucose, cap is present, cyclic AMP is not available, so cap cannot bind with the promoter region. Low glucose, cyclic AMP is available, it binds with the cap protein, and both of these they bind with the cap site. RNA polymerase can do transcription here. जी, any question? No, sir. Okay, so next these two slides just diagrammatic explanation. जितनी मैंने बात की है, जो text और सारा procedure पहले बताया है, this is another way to explain you the situation. कुछ तस्वीरें हैं colorful, ये देख लीजिए. This is the bacterial cell. This one is the Lac Operon. Green is A, Y, Z gene. Then this one is the repressor protein, which is attached with the promoter operator region. Then we come up with a magnified repressor. और अगर अब आप ये देखें, repressor में टेट्रामेरिक सब यूनिट है, एक जो है वो फिरोजी कलर में है, दूसरा पर्पल कलर में है, दो इसी तरह से जो है इसकी बैक के ऊपर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं. And if you look at these protein molecules, there is a depression visible, and this depression is basically shown as a site for attachment of lactose. Now this is what is happening within the cell, that lactose molecule, they are increasing within the cell, and when these lactose molecule, अब lactose with glucose और galactose का combination है, तो यहाँ पे अगर देखें, एक पार्ट को white show किया गया है, दूसरे पार्ट को red show किया गया, to tell you this is lactose. Lactose enters into the cell, it binds with the repressor, and in the next picture you have to focus on the attachment sites of this protein. It becomes flat, that means conformational changes, and it leaves the promoter operator junction. When it leaves the promoter operator junction, then what happens? Polymerase comes, transcription goes on, and you get this one, the RNA, which is polycistronic, ribosomes, and one type of protein, second type of protein, and the third type of protein. So this one, the large molecule, is beta-galactosidase, and this one is the yellow one is permease molecule. Soon the permease molecule is translated. Now this is the outside of the cell. अभी lactose जितना भी है वो सेल के बाहर मौजूद है, and there is only one permease shown here. After the permease is made, it comes and the permease at the cell surface increases. Now lactose can rush into the bacterial cell through these permeases. Now we are here in the cell. अब ये जो है ये basically इन्हीं permeases की सेल के अंदर वाली साइड शो की हुई है, और ये देखिए repressor is away having the lactose attached. This is the beta-galactosidase enzyme which is performing the digestion of the lactose into glucose and galactose, and when all the lactose is consumed, these four molecules are separated. They are digested by the lactose here, beta-galactosidase enzyme, leaving behind this repressor to go back to its position and inhibit the
transcription of the operon. यहाँ पे मैंने प्लस रेगुलेशन की या पॉजिटिव कंट्रोल की बात नहीं की, बिकॉज वो ऑलरेडी मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर चुका. So this is all about Lac Operon. If you have any question, you can ask. Okay. Now, आज मैं सिर्फ लैक ऑपेरॉन पे ही बात ख़त्म करूँगा, लेकिन कुछ आपको पॉइंट्स दूंगा ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के, जिनको आप कल जो है वो देख के आए बुक में से, ताकि उसको. आज का जो लेक्चर है लैक ऑपेरॉन, तो सर ये ना आप नेट पे इशू आ रहा था, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी. आप ये पोस्ट कर दें काइंडली. लेक्चर मैंने पोस्ट कर दिया वो, ठीक है, लेक्चर पोस्टेड है वहाँ पे. तो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन की जो बात है ना, वो जितनी बात हमने की है ना आज, कि कैसे लैक्टोज आता है, रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है, फिर रिप्रेसर सेपरेट होता है. ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में वी विल टॉक एंटायरली अपोजिट. अगर ट्रिप्टोफैन मौजूद है, इट विल रिमेन तो ये जो एसोसिएट. रिकॉर्डिंग है ये वाली, ये पोस्ट कर दे. रिकॉर्डिंग मैं अभी पोस्ट नहीं करूँगा, कुछ अर्से के बाद पोस्ट करूँगा. अभी आप लोग जो है वो क्लासेस अटेंड करें, ठीक है. Okay, so what I was telling, yes, the tryptophan operon और lac operon में difference ये है, when lac operon comes, binds with the repressor, then repressor separates from the promoter region. On the other hand, when tryptophan is present, it binds with the repressor and repressor remains attached with the promoter region. So पहला difference तो ये है. और अगर ट्रिप्टोफैन नहीं है मौजूद, देन रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड. एक तो ये चीज़ आपने पढ़ के आनी है. इसको हम कहेंगे ट्रिप्टोफैन कैन बी कंसिडर्ड एज को रिप्रेसर. नंबर 2 के ऊपर आपने जो है प्रोमोटर रीजन में एक सीक्वेंस होता है जिसको हम लीडर सीक्वेंस कहते हैं. ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन रीजन में एक लीडर सीक्वेंस होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है. और नंबर 3 पे ट्रिप्टोफैन जो मैसेंजर आरएनए है वो दो किस्म का बनता है. एक को कहते हैं प्री मैसेंजर आरएनए और दूसरे को कहते हैं मैसेंजर आरएनए, या फिर इसको मैं और टर्म यूज़ करूँ, अटेनुएटेड मैसेंजर आरएनए एंड मैच्योर मैसेंजर आरएनए. कल इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो फिर आप लोगों के लिए समझना आसान होगा. So this is all for today. Anything you want to ask? Otherwise, let's proceed for attendance.